So, Assalamu alaikum all to the second session, to the second lecture on the different flaws and mistakes in MCQs. अच्छा तो हम related to test wiseness बात कर रहे थे कि there are two categories, test wiseness and irrelevant difficulty. तो grammatical cues हमने discuss किया, logical cues हमने example के साथ discuss किया. The third जो ऑप्शन है जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं और ये बहुत ज्यादा अक्सर यूज होता है जब आप पेपर बनाते हैं तो उसमें हम ये अक्सर मुख्तलिफ एमसीक्यूज में ये हमारा इस्तेमाल होता है और ये एब्सोल्यूट टर्म्स मिसाल के तौर ऑलवेज एंड नेवर ये हम वहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि एक फितरी सी बात है कि कोई भी चीज जो है हमेशा एक क्राइटेरिया के साथ नहीं होता यानी जो है हमेशा नहीं होता हमेशा हाँ नहीं होता इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि दिस इज द ओनली काज ऑफ दैट डिजीज तो ये हो नहीं सकता बिकॉज देयर माइट बी some deviation from that only so that's why we shouldn't use such absolute terms in our options और अगर ऑप्शन में हमारे अगर ऑप्शन में हमारे इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं so then it is a flaws and that flaws is known as the absolute term. So many higher level ideas that are not absolutes, never true or always true or often true absolute. Students are expert at arguing the outlier ideas that is outside such absolute and that's why this mistake, this absolute term is the test wiseness related. So during construction of MCQs, and specifically in the clinical subjects, in the medical subjects, subjects related to the health sciences, avoid absolute words and substitute such words that require more judgment, which is the best, which is least likely. For example, here we have an MCQ, and that and deep venous thrombosis, DVT. Settings में. And deep venous thrombosis or DVT of the lower extremity, which of the following statement is most apt? अब यहाँ पर अगर हम देखें कैंडी माइक जो है वो थोड़ा सा म्यूट कर ले कैसे करें क्लिक करें इसको डिस्कनेक्ट करें डॉक्टर अजहर कैंडी यू आर रिक्वेस्टेड कि थोड़ा सा माइक जो है वो म्यूट कर ले हम वैसे भी ये हमारा कुछ शॉर्ट सेशन है इसके बाद जो है हम एंड कर देंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू अच्छा ओके सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें 70% of patients will have a physical finding on the examination. The gold standard test for the diagnosis of DVT is the radiofibrogen leg scanning. Anticoagulant is the treatment of choice for the dead, and pulmonary embolism always come from the lower extremity DVT. So if we look at the option D, we can find an absolute term there. और ये जो है, this is not all the correct answer. That the pulmonary embolism that will always come from the lower extremity DVT. So during the construction of such MCQs, these absolute terms should not be added into the options. Next is the long correct answer. Again, this is related to test wiseness. जो test wise students होते हैं, 4 या 5 options एक MCQ में होते हैं. जो लंबा है उसमें जो कंटेंट ज्यादा होती है जिस ऑप्शन में यूजुअली स्टूडेंट उसी को टिक करते हैं दैट it contain more content and they contain more data and more information and that's why that would be the correct option. So this mistake we can say this flaws is known as the too long to be wrong rule. So it should be avoided. The correct answer is long and more specific or more complete than the other option. And we often feel we should include more detail in the correct answer to ensure that it is clearly the best choice. And unfortunately, test-wise students can use this to their advantage.
So what is the solution for this problem, this pathology? Keep the options similar in length and level of detail. One more thing, अगर यहाँ पर वो जो है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेंथ में, तो हम जो है उसकी लेंथ के लिहाज से भी उसको तरतीब से रख सकते हैं। यानी सबसे कम जो है वो टॉप पर हो, फिर उसकी ज्यादा लेंथ हो तो फिर हम सेकंड पर रखें, फिर ज्यादा लेंथ उससे ज्यादा तो थर्ड पर लिखें। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि हमारे जितने भी MCQs है वो एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ हो, यानी या असेंडिंग ऑर्डर में हो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो या वो लेंथ वाइज ऑर्डर में हो। इससे भी क्या होगा कि स्टूडेंट्स को वो जो एक टेस्ट वाइज ट्रिक्स है, वो जो आइडेंटिफिकेशन वो फ्लॉज है वो थोड़े से कम हो सकेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि a parent of a 2-year-old boy reported that issues entering when walking. Entering का मतलब है कि toes जो है ये अंदर की तरफ है and heels जो है they are to the outside, यानी the distance between the heel is too much posteriorly and toes के दरमियान जो interior distance ये कम है. So this is known as the entering walking. On examination, the child exhibit femoral introversion, which is an abnormality of the different inclination and the biomechanical structural deformity of the femoral. So the most appropriate treatment is, if we look at directly to the option, the A, B, C, D, इसमें से जो A option है, that is too much lengthy as compared to the other three, and the students will surely think that the correct answer is A. So अगर हम इसकी नोट्स को थोड़ा सा यहाँ पे, तो I think यही बात जो क्लियर हो जाएगी कि in this item which we have described now, the option is longer than the other options and it is the correct one. Item writers tend to pay more attention to the correct answer than to the distractor, because you are teachers, you write the long correct answers that include additional instruction material, parenthetical information, that the sieves, etc. So that it means this type of long answer mistake that should be divided when during the construction of MCQ. अच्छा, वर्ड रिपीट का मतलब ये है कि स्टेम में एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है जो जिससे रिलेटेड मीनिंग वर्ड हम ऑप्शन में दे देते हैं। सो इससे भी स्टूडेंट्स एक आइडिया ले लेते हैं उसको, कि एक क्लू मिल जाता है कि उसमें जो ऑप्शन मीनिंग वहां एक वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग के साथ वर्ड जो है सिनोनिम उस स्टेम में भी होता है। So such mistake is again, such flaws is related to the test wiseness. जैसे for example अगर हम इस MCQs में देखें, a 58-year-old man with a history of heavy alcohol use and previous psychiatric hospitalization is confused and agitated. He speaks of experiencing the world is unreal. This symptom is called. अब ही यहाँ पर इसका अगर हम इस सेंटेंस को, he speaks experiencing the world is unreal, एंड इस ऑप्शन में से ABCDE में से अगर हम रीड करें, डीपर्सनलाइजेशन, डीरिलाइनमेंट, डीरियलाइजेशन, फोकल मेमोरी डेफिसिट, सिग्नल एंजाइटी। तो ये जो वर्ड अनरियल है एंड डीरियलाइजेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अनरियल एंड डीरियलाइजेशन। तो अगेन जो है इसको हम कहते हैं कि वर्ड रिपीट फ्लॉज which is related to the test wiseness. Convergence strategy, the correct answer include the most element in common with the other options. ये वाली मिस्टेक हमसे तब होती है जब हम ऑप्शन जो बनाते हैं उसमें से 4 या 5 कंपोनेंट होते हैं, यानी जब हम रिलेशनशिप दे देते हैं या जो है हम उसमें, यानी एक ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन ABCD और A में भी 4 कंपोनेंट से, B में भी 4 कंपोनेंट से, और हम जब उसमें से एक को छोड़ के बाकी में वो 1, 2 या 3 कंपोनेंट चेंज करते हैं ताकि हम इसको डिस्ट्रैक्टर्स बना सके। तो बाज़ों का इस तरह होता है कि अमूमन जो वर्ड ज्यादा रिपीट होता है वो सही ऑप्शन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, ओरल पोलियो वैक्सीन इंड्यूसेस स्पेसिफिक। अब यहाँ पर देखिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक्टिव आर्टिफिशियल कंजेनिटल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
आप ऑप्शन में लग रहा है कि इम्यूनिटी इन चार ऑप्शन में से, इट मीन ये इम्यूनिटी शुड बी देयर इन द करेक्ट आंसर। फिर हम यहाँ देखिए दिस इज द कंजेनिटल, दिस इज द एक्वायर्ड, 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 एक्वायर्ड। इट मीन यहाँ पर जो एक्वायर्ड है ये ज्यादा दफा यूज हुआ है, सो इट मीन एक्वायर्ड शुड बी इन द करेक्ट आंसर। इसमें फिर अगर हम देखें नेचुरल जो है दिस इज 2 टाइम्स एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल दिस इज द 3 टाइम्स, अगेन दिस इज मोर इन नंबर, सो आर्टिफिशियल शुड बी एक क्लू मिल सकते हैं कि दैट मे बी इन द करेक्ट आंसर। फिर हम देखिए पैसिव एक्टिव, पैसिव एक्टिव, एक्टिव यानी एक्टिव यहाँ से ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखिए आर्टिफिशियल ज्यादा है तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, एक्वायर्ड भी है तो ये ऑप्शन भी, उस अगेन बी की तरफ हम जा सकते हैं। एक्टिव जो है इसमें तो 3 दफा एक्टिव एंड 2 दफा पैसिव, अगेन सो बी ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें से जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा इसमें शामिल है। सही है, यानी अगर हम एक ही तरफ जाए तो वहां कंजेनेटल जो है बाकी 4 में से एक कम है। अगर हम पैसिव चले सी में चले तो पैसिव एक्टिव से कम यूज हुआ है। अगर हम डी और ई में चले तो वहां पर नेचुरल जो है इन 3 के बजाय यहाँ पर 2 बार हुआ है, सो बी। अब आई डोंट हैव दैट नॉलेज अबाउट द वैक्सीन, बट यहाँ से अगर मैं एक स्टूडेंट और मैं इसी को यूज करके तो कन्वर्जन स्ट्रेटेजी के जरिए मैं इसी को एक आंसर दे सकता हूँ, जो गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक क्लू हमने नहीं देनी चाहिए जिससे स्टूडेंट जो है वो इसी आंसर को ढूंढे, इसी को एक ट्रिक बना ले। सो इट मीन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विन जब हम कोई भी इस तरह ऑप्शन दे देते हैं। सो कन्वर्जन स्ट्रेटेजी वाली जो एग्जांपल है कि इसमें हम इक्वल रिपीटेशन दें या ज्यादा कंपोनेंट ना दें, क्योंकि ये इससे तो अननेसेसरी जो कम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है एंड टू मच डिफिकल्टी जो है ये भी आ जाती है, विच मे क्रिएट कंफ्यूजन एज वेल। The student will select the answer that combines the most element of the option, जो अभी इस एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन कर दिया। The correct answer most likely is the one that combines the most number of common element from the other distractors. If a word occur in most of the option, most likely the correct answer will contain that word. And if a term appears only in one option, then that probably is not the correct answer. Like यहाँ पर अगर हम congenital देखें तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में congenital immunity यूज हुई है, बाकी सब में acquired immunity, acquired, it means this can't be the correct option. Similarly अगर हम फिर यहाँ देखें natural is in the last 2 में सिर्फ यूज हुआ है, और अमूमन हम जब MCQs बनाते भी हैं तो हम जो गलत ऑप्शन बनाते हैं तो लास्ट वन में एक कॉपी कर देते हैं या एक लिख देते हैं और फिर नीचे जो है उसमें से कुछ चेंजेस करके हम उससे ऑप्शन बना लेते हैं। सो अमूमन लास्ट ऑप्शन में यूजुअली हम चेंज करके इसको गलत ऑप्शन बना लेते हैं। सो सच फ्लॉज जो है विच इज अगेन रिलेटेड टू द टेस्ट वाइसनेस, दिस इज नोन एज द कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। अब इसके अलावा जो MCQs में और गलतियां मिस्टेक्स जब हम करते हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू द इररिलेवेंट डिफिकल्टी। अब इसमें वो जो गलती ज्यादातर इसमें इस तरह हो जाती है कि जिसमें या तो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है या ऐसा ट्रिक हम दे देते हैं जिसको समझना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, या अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम इसमें ऐसी एब्रिविएशन जो है यूज करते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी या एक्रोनिम यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म जो है वो हम नहीं लिखते। तो अमूमन ये गलतियां जो है ये स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करती हैं। और जब भी आप कोई भी MCQ लिखते हैं तो श्योर करें कि इसमें कोई ऐसा एक्रोनिम या एब्रिविएशन यूज नहीं हुआ है जो फुल डिफिनीशन या कोई कुछ ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एड्स हो गया या यूएस हो गया या जो डीबीटी हो गया, जो यूनिवर्सली एंड कॉमनली यूज्ड एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स है, उसको तो हम फिर भी कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मेडिसिन में कुछ ऐसी जो यूज होते हैं जो दे आर लेस कॉमनली यूज्ड, तो उसको जो है स्टेम के दौरान ही उसको फुल फॉर्म के साथ लिखना चाहिए। एक ये भी है कि अगर एक टर्म जो है 3 से ज्यादा दफा अगर किसी स्टेम में यूज हो तो फिर हम एब्रिविएशन या एक्रोनिम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इट इज ओनली यूज्ड 1 or 2 टाइम, then it is more appropriate to use the full form of that word or that phrase. मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो irrelevant difficulty जो है उससे रिलेटेड जो एक मिस्टेक अक्सर हमसे हो सकती है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम जो है ऑप्शन जो लिखते हैं
वो या बहुत ज्यादा लेंथी लिख देते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिख देते हैं, या हम 2-3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सेम मीनिंग देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि डबल मीनिंग या डबल फ्लॉज जो है फ्रेज को कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कहें कि पीर रिव्यूज कमेटी इन द हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, may move to take action against the physician credentialed to care for patient of the HMO. There is an administrative requirement to ensure that the physician receive due process in the course of these activities, and due process must include which of the following. अब ये जो है पहले तो ये इस तरह की MCQ जो है, अगर आप इसको समझिए, the meaning of such MCQs that is very difficult. So इस तरह के स्ट्रिंग जो है again that is difficult to understand by the students which is, लेकिन फिर भी अगर ये समझ में आ जाए, अगर हम नीचे देखें और यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन को देखें, चांस टू कन्फ्रंट विटनेस अगेंस्ट, तो विटनेस और इसमें फिर अगर हम देखें एविडेंस विच इज इन द डी, तो ये दोनों वर्ड जो है विटनेस एंड एविडेंस ये सिमिलर मीनिंग देते हैं, और यही जो है अगेन एविडेंस अगेंस्ट हम सिर्फ जी दोबारा ये बात उन्होंने यूज की है। तो ये जो है इस तरह की जो ऑप्शन जो है ये अगेन डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है कि इसमें से अक्सर जो है एक ऑप्शन जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3, क्योंकि उसमें हम एक ऑप्शन ए लिख देते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, और डी में हम तीनों को कुछ ना कुछ सिनोनिम के साथ इंक्लूड करते हैं। सो इस तरह की मिस्टेक जो है दैट शुड बी अवॉइडेड। मिसाल के तौर पर इस एमसीक्यूज को जैसे स्टूडेंट देखेगा अभी तो इसको एंड तक छोड़ेगा कि चलो अगर टाइम मिले तो वी विल सॉल्व सच एमसीक्यूज, अदरवाइज इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो सच एमसीक्यूज जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसे एमसीक्यूज से आप नॉलेज चेक तो नहीं कर रहे बल्कि उसकी कुछ और कॉम्पिटेंसीज चेक कर रहे हैं, चाहते हैं आप असेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग टर्म्स या उसकी जो स्पीडिंग रीड कितनी है। So it means during the assessment, when we are going to assess the knowledge of our student, such questions which having the long option that should be avoided. Stream जो है अगर ये लेंथी है it's okay, because जितनी ज्यादा information stream में होंगी उतनी ही जो है स्टूडेंट के लिए easy होगा ताकि वो question को understand कर सके। But again we should avoid the unnecessary detail and unnecessary information in the stream as well. अच्छा ओके, सो अगर हम इसको देखें रीड करने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज अगर हम ए बी सी डी ई देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है उन्होंने एक डिटेल इस तरह लिखी है कि इसमें स्टूडेंट अक्सर जो है इसको या गलत कर देता है या अपनी तरफ से लगा लेता है, गिस कर देता है या उस पर छोड़ जाता है। दूसरी जो मिस्टेक उसमें यहाँ पर आ रही है, अब अगर इसमें इसको रीड करें कि इसमें जो पहला वन जो है जो स्टडी डिजाइन यानी the prospective course study design is the most suitable for estimating the prevalence of AIDS, cross section study design, and then तो ये दोनों जो है फिर भी थोड़ा बहुत एक हेल्थ केयर प्लानर के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप सी को देखें, सी एंड डी यानी तीनों ऑप्शन जो है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो एक्टिविटीज होती है, उनकी जो ड्यूटीज होती है, उनके साथ बिल्कुल इनका लॉजिक नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, incidence is estimated as the proportion of study subjects, तो ये एक information हमें मिल गई, who test positive for AIDS from a random sample individual selected from the community। अब इस MCQ इस ऑप्शन में देखिए, इसमें ड्यूटी की कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अब एक इंफॉर्मेशन हमें देती है, यानी ट्रू फॉल्स के लिए तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन ऊपर किया गया है कि एक टीम of healthcare planner is wishes to estimate the prevalence and incidence of AIDS in a particular community, which of the following is most appropriate। अब ये दोनों इसलिए सही ऑप्शन जो है उनके लिए हैं बिकॉज ये हेल्थ केयर प्लान जो है अगर वो प्रेवलेंस करना चाहे सो दे गो फॉर द सिटी डिजाइन। अगर ये सॉरी अगर वो प्रेवलेंस मालूम करना चाहते हैं तो दे विल गो फॉर द क्रॉस सेक्शन स्टडी। अगर वो इंसिडेंस मालूम करना चाहते हो दे विल गो फॉर द कोर्स सिटी डिजाइन। सो ये दोनों जो आंसर जो है
इसके लिए थोड़ी सी ऑप्शंस भी सही दे रहे हैं और लॉजिकली भी इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन नीचे तीनों की तीन ऑप्शन जो है सी एंड डी, दे आर नॉट रिलेटेड टू द ड्यूटीज आर टू दैट appropriateness टू द हेल्थ टीम प्लानर्स। तो इस तरह की भी जो है टू मच लेंथी अननेसेसरी लेंथी ऑप्शन जो है, दे मेक ए लॉट ऑफ फ्लॉज एंड डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी for the student to solve such question. Sometimes options which are given there, they are in an illogical order के साथ होते हैं. For example, अगर हम इसमें देखें, end arteries are seen in the different structures उन्होंने दी हैं, जैसे adrenals, testicles, thyroid gland, and thymus and brain. So it will be too easy for if the options they are in the order. जैसे अगर हम इन ऑप्शन को, ये जो आपके सामने है, इनको अगर हम एक टॉप से नीचे की तरफ हम इसको अगर तरतीब से देखें तो सबसे पहले जो है ब्रेन आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वी कैन से देयर इज थायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड, लास्ट में जो है फिर देयर शुड बी द टेस्टिकल्स। लेकिन उससे क्या होगा, एक तो इसको रीड करना भी आसान होगा, एक ऑर्डर भी होगा। तो ये ज्यादा बेहतर है कि हम इसको एक ऑर्डर के साथ लेके एज कंपेयर टू राइटिंग दैट इन द illogical order. So it is a good practice to be consistent in the use of alphabetical order. Whenever options are in spectrum का मतलब ये है कि when they are connected, they all are glands, they all are bones, और इस तरह की कुछ जो है एक spectrum दे रहा हो. It's preferable to listen them in either a logical order or alphabetically. For instance, numeric options should be listed in ascending or descending order. तो इस तरह की जो है MCQs में ये भी जो है हम करनी चाहिए. Options are not parallel, or we can say that the heterogeneous. The options following a stem, they belong to different categories. This is one of the frequently encountered mistakes. For example, अगर हम यहाँ देखें, एक MCQs को read करते हैं, a 75-year-old woman complains of severe neck and shoulder pain. You suspect polymyalgia. Which of the following is the most appropriate? पहला ऑप्शन अगर हम इसको देखें, shoulder girdle muscle tenderness is not related to the condition. Loss of weight and fear should be expected. ये दोनों अगर देखी, ये clinical features बता रहे हैं, clinical जो manifestations है वो बता रहे हैं, signs symptoms बता रहे हैं. लेकिन अगर हम C और D को देखें, जहां पर her urine is likely to contain Mens Jones protein or muscle biopsy is positive if the diagnosis is correct. तो पहले दोनों options they are related to the signs and symptoms of the condition. फिर सी एंड डी जो है, दे आर रिलेटेड टू द क्लिनिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. फिर नीचे अगर लास्ट ऑप्शन को देखें, स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस ए वेरी प्रॉम्प्ट एंड वेरी इमीडिएट सिम्प्टोमेटिक रिस्पांस. तो इसमें एक ही क्वेश्चन की ऑप्शन में देयर आर ट्रीटमेंट एज वेल, देयर आर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एज वेल, देयर आर साइन एंड सिम्पटम्स आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड द क्लिनिकल फीचर्स एज वेल. सो इसको जो है इसको हम कहते हैं कि देयर इज दैट हेटेरोजेनेसिटी in the options, और इसको कहते हैं मेडिकल एजुकेशन लैंग्वेज में there is the options they are not parallel to each other. अब यहाँ पर सारे ऑप्शन तो या क्लिनिकल फीचर्स होनी चाहिए, या क्लिनिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या सारे ऑप्शन ट्रीटमेंट होनी चाहिए. बिकॉज ट्रीटमेंट, देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड फीचर्स, इन तीनों का एक दूसरे के साथ इस तरह कोई कनेक्टेड नहीं है. हाँ, ये उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑलरेडी हमने उसके बारे में कहा है कि ये नहीं यूज करनी चाहिए, जैसे which of the following statement is true, या which of the all of the following they are true statement except one. तो इसके लिए फिर ये इस तरह की हेटेरोजेनेसिटी आ सकती है. लेकिन आगे जब हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली हम ये डिस्कस करेंगे कि वी शुड अवॉइड सच स्टेटमेंट जिसमें हमने ये लिखा हो कि all of the following they are true regarding that ABC except, या identify the wrong option, identify the most correct option from the following. तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है they shouldn't be used during the construction of MCQs, specifically in the clinical subjects. Again, another common mistake जो अक्सर हम टीचर्स करते हैं during the construction of MCQs, वो ये है कि we use none of the above या all of the above option in the with the step. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन को रीड करें, चिकन पॉक्स is caused by the same virus that causes herpes simplex, herpes zoster, herpetic stomatitis, all of the above and none of the above.
अब अगर एक स्टूडेंट है और वो काफी जो है उसको ये पता है कि ए एंड बी ऑप्शन जो है ये सही है, सेम वायरस जो है ये इन दोनों को काज करता है। अब उनको ये नहीं पता कि ये जो हार्पेटिक जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये काज करता है कि नहीं, कि लेकिन वो इन दोनों के बारे में श्योर है कि ये दोनों तो बिल्कुल है। तो विदाउट नोइंग द थर्ड ऑप्शन ही विल डायरेक्टली गो फॉर द ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज उनको तो पता है कि ऑलरेडी नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, बिकॉज टू ऑफ देम आर करेक्ट। अब ये जो है अगर दो करेक्ट है तो इट मीन इनमें से जो एक करेक्ट करना हो, एक करेक्ट आंसर हमने देना है, तो इट मीन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो सी ऑटोमेटिकली जो है ये करेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है वो यूज करेगा। तो इस तरह की भी, एंड दैट इज द रीजन कि कोशिश यही करनी चाहिए कि ड्यूरिंग द ऑप्शन ये ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, ए बी एंड सी, बोथ ऑल ऑफ द ए बी एंड सी, इस तरह की जो ऑप्शंस है that should be avoided to use during the construction of web. Numeric data, they are not stated consistently. मिसाल के तौर पर कुछ न्यूमेरिक डेटा, फॉर एग्जांपल आप प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं या कोई नॉर्मल वैल्यू की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम आपने बनाए हुआ है जिसमें से जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके ऑप्शन जो आंसर जो है वो न्यूमेरिकली है, तो वहां पर आप जो ऑर्डर है उनका उनका जो फॉर्मेट है वो आप सेम रखेंगे, सही। बिकॉज अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करोगे, कुछ परसेंटेज में है, कुछ रेंजेस में है, कुछ न्यूमेरिक है, तो इससे वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी उसमें, वहां पर जो एक हेट्रोजेनासिटी जो है क्रिएट होगी और पैरेललिज्म जो है वो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एमसीक्यूज में देखें, a 20-year-old woman delivered a boy with Down syndrome and that your answer will be, so यहाँ पर अगर हम देखें 2%, then 5%, 25%, less than 10%। अब अगर हम देखें less than 10% में ये दोनों ऑप्शन जो है ये आ रहे हैं, एंड देन 15 to 18% इसमें जो है अगर हम देखें, again this is a range, D and E these both are range, while the other two they are directly specific answers। तो इस तरह की अगर एमसीक्यूज में आप ऑप्शन परसेंटेज का दे रहे हैं, कोई भी, तो या तो सारे रेंज दे दे या उसमें सारे के सारे एग्जैक्ट होल नंबर दे। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है दैट शुड बी कंसिस्टेंट। तो अगर इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है, अगेन दैट में क्रिएट सम complexity and difficulty and flaws in the MCQs for the students। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी हम करते हैं, इसमें से हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो एमसीक्यूज आपने रीड करनी है, और जहां जहां पर भी आप बोलेंगे कि इसमें मसला कहाँ पर है, सो आपने सिंपल सिंपल जो कोई भी जो है वॉलंटियरली आपने एमसीक्यूज में से जो मिस्टेक है, जो फ्लॉज है, वो आइडेंटिफाई करना है, और फिर आगे जो है हम इसको स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन से। सो एनीबॉडी, अगर हम ये देखो, डार्ट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन HIV एड्स, एंड देन एंड तक आप इसको लेके जाए। तो जितने भी ऑप्शंस है एंड इसको रीड करने के बाद इसमें कंटेंट वाइज, टेस्ट वाइजनेस या इररिलेवेंट डिफिकल्टी किसी भी कैटेगरी वाइज अगर आपको मिस्टेक लगी, तो आप काइंडली इसको जो आइडेंटिफाई कर ले, एंड देन वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें मसले हैं। पहले तो आप देखिए, डॉट्स जो है ये एक ऐसा एब्रिविएशन है जो यूजुअली इट इज नॉट यूटिलाइज्ड एंड कॉमन यूज नहीं होता, तो इसलिए जो है इस तरह की जो लिस्ट लाइकली जो एब्रिविएशन है ये यूज नहीं करनी चाहिए। Secondly, this is a single best correct MCQ rather than just single best answer, because option are either 100% true or 100% false. So यहाँ पर true false के लिए that is a very good option then, but for the other then it is not a very good question for the best choice question. सही?
अब यहाँ पर डॉट्स जो है, जैसे हमने कहा कि इट इज लेस कॉमनली यूज्ड acronym which is used for the direct absorb therapy short course. So इस तरह की abbreviation से जो है स्टूडेंट जो है ये उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होगा। ऐसा इस तरह में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बाकी भी इस तरह की एग्जांपल है, जैसे आइडेंटिफाइड फ्लॉज 2 और फिर इसमें आंसर जो है दे आर बीइंग गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अनदर एमसीक्यू अगेन इट कंटेन, अगर हम यहाँ देखें ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट ट्रू, ये गलत है। बोथ ए एंड बी अगेन ये एक गलत है। सिमिलरली ऑप्शन को देखिए दैट इज टू मच लेंथी, तो अगेन इट इज मिस्टेक इन दैट। अगेन यहाँ पर अगर हम इनको देखें जो एंटीबायोटिक जो स्टेपेलोकोकी जो है एंड स्ट्रेप्टोकोकी, ये ऑप्शन इट इज टू लॉन्ग एज कंपेयर टू अदर 4 ones. So again it may give some test wise and some tricks to the test wise students. अच्छा, यहाँ पर भी वही है कि एक तो यहाँ पर बड़ी मिस्टेक ये है कि जब हम क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ एस्थमा की बात करते हैं, सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लिनिकल diseases are that, so we should have some dignity and we should have some clinical scenario before that. एक सिचुएशन हमने बयान की, एक कंटेक्स्ट देना है स्टूडेंट्स को, उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन बनाना है। तो अगेन वन एंड बिगेस्ट फ्लॉ जो अक्सर हम इस तरह करते हैं कि हाई डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन को हम जो है कंटेक्स्ट फ्री दे देते हैं, हालांकि जो हायर लेवल की जो डिफिकल्टी वाले एमसीक्यूज जो होते हैं यूजुअली दे शुड हैव सम कंटेक्स्ट एंड व्हिच जहां आप पिछले लेक्चर जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो व्हाट वी मीन फ्रॉम द कंटेक्स्ट रिच एंड कंटेक्स्ट फ्री एमसीक्यूज। अच्छा, अब जनरल गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। फिर आपको ये लेक्चर जो है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसमें से फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए करें कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर फ्लॉज मौजूद है। जनरल गाइडलाइंस वी कैन से दैट, या इस तरह हम समराइज करें, या जब भी हम एमसीक्यूज पेपर बनाते हैं तो कुछ जनरल गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना चाहिए, और ये है कि इंक्लूड एज मच ऑफ द आइटम एज पॉसिबल इन द स्टेम, यानी लॉन्ग स्टेम एंड शॉर्ट ऑप्शन। ये इसका ख्याल रखिए कि बेशक हमारे स्टेम जो है ये लेंथी हो, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट ऑप्शन हमारे थोड़े से शॉर्ट होने चाहिए। उसकी वजह यही है कि इररिलेवेंट जो डिफिकल्टी है ये थोड़ी सी अवॉइड उससे होगी, एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक द करेक्ट आंसर। Divide negatively priced item except are not in the lead in, and अगर है भी वहां पे तो उसकी नीचे जो ऑप्शन होंगी there should be short option. Avoid writing questions of the such form which containing the stem like which of the following statements is correct, each of the following statement is correct except, तो इस तरह की जो है ये भी नहीं लिखनी चाहिए। The option should be written in ascending order, short option to long one, or ascending order, descending order, कोई भी जो है, या जो alphabetical order जो है हम लिख सकते हैं, तो इसके प्रॉपर जो है एक लॉजिकल ऑर्डर होनी चाहिए। अच्छा, टू कंसेप्ट है ये टॉप डाउन एंड टॉप बॉटम अप्रोच जो है, जब हम टीचिंग करते हैं तो उस वहां पर भी जो है ये कॉमनली यूज होते हैं। दो डिफरेंट अप्रोच हो, एक को कहते हैं टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप। अच्छा, टीचिंग के अलावा हम इन दोनों को टर्म्स इस तरह कह सकते हैं। टॉप डाउन का मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अक्सर डिसीजन होती है, और वहां पर डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ जो लीडर्स होते हैं, जो हाई हायरार्की पर बैठे हैं, सिर्फ वो डिसीजन लेते हैं, और फिर वो डिसीजन जो इम्प्लीमेंट होती है नीचे जो इसके सबऑर्डिनेट उन पर, तो such hierarchy, such system is no approach is known as the top down approach. On the other hand, the bottom up approach ये है कि जिसमें जितने भी सबऑर्डिनेट उसको भी एक मौका दिया जाता है कि आप इस पॉलिसी में, इस रूल्स में आप क्या कह रहे हैं, इस फैसले में कि क्या रहे, और वो कुछ दे रहे थे, फिर ऊपर जाके ये इसको कंफर्म और इसको फिर अप्रूव किया जाता है। दैट अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द बॉटम अप अप्रोच। लेकिन ये एक अलग चीज है। ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ द लेसन्स, अगर हम जो है पहले कुछ डिटेल दे देते हैं, सही है, और डिटेल के बाद जो है हम उनको थोड़ा सा बिगर पिक्चर दे देते हैं,
सो इसको यूजुअली हम जो है बॉटम अप स्ट्रेटेजी कहते हैं। लेकिन अगर हम उनको पहले जो है डिटेल बाद में दे देते हैं, उससे पहले हम कुछ जो बिगर टॉपिक है ये डिजीज के बारे में बता देते हैं कि ये डिजीज है, और उस डिटेल डिजीज के बाद में वो डिटेल हम दे देते हैं। सो दिस इज नोन एज द टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स रीड करें तो मेरे ख्याल में ये इट विल क्लियर योर concept about the top down versus the bottom up approach during the making of MCQs or during making of the lesson plan as well. So when you have planned your lesson, you might consider using the bottom-up strategies, which take the smallest detail of the topic before having students learn the bigger picture. So yeah, or you might consider using the top-down strategies जो हमने बाद में उसकी बात की, which take the concept यानी and पहले आप उस पर बात करें थोड़ा बहुत जो bigger picture है, जो concept है, and after that the detail of the topic. The top-down approach goes from the general to specific, and the bottom up approach begin at the specific and moves to the general. तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो टॉप डाउन है यूजुअली इसमें ये क्लिनिकली बैकवर्ड जिससे हम कहते हैं कि हम एक डिजीज दे देते हैं, डिजीज के फिर जो है हम उसकी फाइंडिंग्स दे देते हैं, उसकी जो साइन सिम्टम्स वो दे देते हैं और फिर यानी उसकी काज की तरफ चलते हैं। सो दैट इज एक्चुअली क्लिनिकली बैकवर्ड सिनेरियो या वेगनिटी, और इसको हम जो है नॉलेज और रिकॉल के तौर पर इस तरह की क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू द low level difficulty, then we can use the top down approach. But if we have using the higher difficulty object to a higher difficulty level, then we can use the bottom up approach, जिसमें ये होता है कि आप start करते हैं from the details of the patient, एक इतनी उम्र का है, मेल है, इतना पेशेंट है, उसको ये है, ये है और ये है, और इन सारे डिटेल्स के बाद हम उनसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई व्हाट यू थिंक about what is the diagnosis, what is the proper most appropriate investigation, what is the most appropriate treatment. तो इस तरह की जो है उसको फिर हम कहेंगे bottom up approach, which is actually the clinically realistic approach भी कहा जाता है, जबकि दूसरे को clinically backward approach कहा जाता है। तो ये जो है ये concept भी आप utilize कर सकते हैं when you are constructing your clinical vaginities, when you are constructing your MCQs from the clinical subject. So that was the end of the MCQs. As smallest task for you, which is the second assignment of this program. पहले अब मैं आपको एक ऑलरेडी एक टास्क जो है वो मैं दे चुका हूँ, जो आप सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह सब इसको आपने सबमिट किया है। तो ये जो टास्क है दैट इज आप सब ने एक एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, कोई भी अपने सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर ले, and then construct MCQs of 5 choices alternatives and try to write MCQs without flaws. तो ये जो flaws अभी हमने डिस्कस की हैं, कोशिश करें कि एटलीस्ट देयर मे बी अदर flaws as well, लेकिन जो flaws यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं ये वाले flaws कोशिश करें कि उसमें ना हो। एंड उसके बाद 5 MCQs विदाउट फ्लॉज के बाद आपने उसी टॉपिक से राइट 2 MCQs विद फ्लॉज, एंड उसी 2 MCQs में से आपने जो फ्लॉज उसमें मेंशन किए, जो गलती जो मिस्टेक आपने उसमें यूज की है, 2 डिफरेंट, इस तरह नहीं कि दोनों MCQs में सेम मिस्टेक आपने दोहराया हो, तो दोनों MCQs में आप डिफरेंट मिस्टेक बेशक इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें से एक जो है वो आप जो है इररिलेवेंट डिफिकल्टी करें, दूसरा जो टेस्ट वाइज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक जो मुख्तलिफ हमने क्लासिफिकेशन एंड अभी डिस्कशन की जो फ्लॉज के मुताबिक, तो आप जो है नेक्स्ट टास्क जो हमारे नेक्स्ट हमारा सेशन होगा विच विल बी 2 वीक्स बाद होगा, तो उससे पहले आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करनी है कि जिसमें से आपने कोई भी टॉपिक, और टॉपिक आप लोगों ने किस तरह लिखने के आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में से आपने फिर थीम सेलेक्ट करना है, फिर सब थीम सेलेक्ट करना है, और उसमें से फिर आपने 5 MCQs जो है ये विदाउट फ्लॉज लिखने, यानी आपकी अपनी कोशिश होगी उसमें कोई फ्लॉज या कोई वहां पर कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी,
और 2 आपने विद मिस्टेक लिखते हैं। And the last date of submission of these tasks, these assignment is just before the start of the next session जो हमारा इंशाल्लाह 2 weeks बाद होगा। So thank you so much, Jazakallah khair, and